الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للناس حسنا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے اور جن کی زبان سے نکلا ہر لفظ سچائی، نرمی اور خیر کی روشنی بکھیرتا تھا۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو سنوار سکتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ موضوع ہے وقل للناس حسنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ یہ آیت کا ٹکڑا سورہ البقرہ آیت 83 میں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، اس میں چند بنیادی باتیں شامل تھیں۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جن پر ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر وقل للناس حسنا پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھے الفاظ اور نرم گفتگو کا حکم اللہ تعالیٰ نے عبادت، والدین کی خدمت اور یتیموں مسکینوں کی مدد جیسے اہم اعمال کے ساتھ دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھلی بات کہنے کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہی ہدایت ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ ہماری زبان سے وہی الفاظ نکلے جو محبت، نرمی، خیر خواہی اور بھلائی پر مبنی ہوں۔ بھلی بات کہنے کا مطلب صرف میٹھے الفاظ بولنا نہیں بلکہ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ لوگوں سے سچ بولنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا، دوسروں سے نرم لہجے میں بات کرنا، سختی اور تلخی سے اجتناب کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اچھا اور خیر خواہی والا مشورہ دینا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور سچائی کے ساتھ انصاف کی بات کرنا، دعوت حق یعنی دین اسلام کی تبلیغ ایسے انداز میں کرنا جیسے کہ قرآن میں سورہ النحل آیت 125 میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو۔ قرآن میں بد زبانی اور بدتمیزی سے منع کیا گیا
سورہ فصلت آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھے طریقے سے دفاع کرو، یعنی اگر کوئی برائی کرے تو بھی بھلے انداز میں جواب دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کی زبان ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ قول سدید کی بات کہی گئی ہے۔ قول سدید کا مطلب ہے درست، سچا، حق پر مبنی اور واضح بات کرنا، ایسا کلام جو مبنی بر حقیقت ہو، جھوٹ، مبالغہ، فریب اور کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے پاک ہو۔ زبان کا صحیح استعمال ایک مومن کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی چیز فرد اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی سخت زبان، بدگوئی اور بدتمیزی مسلمان کے شایع نشان نہیں۔ غصے کے وقت نرمی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک آدمی نے نبی کے رسول سے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، یعنی سخت لہجہ اپنانے کے بجائے نرمی، برداشت اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو میٹھے اور نرمی والے الفاظ سے آراستہ کریں، دوسروں کو اچھے الفاظ کہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی دلجوئی کریں، تو یہ بھی ایک نیکی اور صدقہ شمار ہوگا۔ انسان کی زبان اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار کر سکتی ہے، اور اگر غلط استعمال کرے تو یہ ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم بہت دانا اور حکمت والے انسان تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کی تفسیر کے تحت بیان میں حضرت لقمان کے اپنے مالک کے ساتھ حکایت کا ذکر موجود ہے، جہاں حضرت لقمان دل اور زبان کو بہترین اور بدترین اعضاء قرار دیتے ہیں۔ حضرت خالد ربیعی کا قول ہے کہ حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑے تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور 2 بدترین گوشت کے ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ آپ آج بھی یہی 2 چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین مانگے تو بھی یہی لائے گئے اور بدترین مانگے گئے تو بھی یہی لائے گئے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہے تو ان سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائے تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہے۔ معزز سامعین، زبان اگر نرمی، سچائی اور محبت کے الفاظ ادا کرے تو جنت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر جھوٹ، غیبت اور سختی بولے تو جہنم میں لے جانے والی بن جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کے وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز مجھے جنت میں لے جائیں گی اور جہنم سے بچائیں گی؟
नबी के वसल्लम ने फरमाया, आपने चंद आमाल बताए जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, जहाद वगैरह। फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊँ जो इन सब चीज़ों का खुलासा है? हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब नबी के वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी और फरमाया, इसको काबू में रखो। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी ज़बान के बोल की वजह से पकड़े जाएंगे? नबी के वसल्लम ने फरमाया, लोगों को जहन्नुम में औंधे मुंह गिराने वाली चीज़ इनकी ज़बान की पैदा कर दे बातें ही होंगी। यह हिकायत और हदीस हमें सिखाती है कि ज़बान एक ऐसी ताकत है जो हमें इज्जत भी दिला सकती है और ज़िल्लत भी, यानी ज़िल्लत में भी डाल सकती है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो यह हमें जन्नत की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करें तो यही ज़बान हमारे लिए हिलाकत में मुब्तला कर सकती है। बस हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान पर काबू रखें, हमेशा नरमी और भलाई की बात करें और बज़बानी व तल्ख़ लहजे से बचें। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी के वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अच्छी और नरमी वाली बात कहना, वक़ुलु लिन्नासि हुस्ना पर हम अमल करें, सच बोलना, झूठ, फरेब और धोखाधड़ी से बचें, बज़बानी से परहेज़ करें, गाली, तंज, गीबत और इल्ज़ाम तराशी ना करें, खामोशी की आदत डालें, गैर ज़रूरी बातों से बचें क्योंकि ज़्यादा बोलने से गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। भली बात व नर्म बात करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, नेकी और खैर के रास्ते पर चलने में मदद मिलती है, दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। बज़बानी और सख्त लहजे से नुकसानात होते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा होती है, दिलों में बुग़्ज़ और नफ़रत बढ़ती है, लड़ाइयाँ और झगड़े जन्म लेते हैं, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के वसल्लम का फरमान है, अल्लाह हर मामले में नरमी को पसंद फरमाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये उसूल सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू तक महदूद नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी के कई पहलुओं में लागू होता है। हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज न सिर्फ मोहब्बत, नरमी और खैर ख्वाही पर मबनी हों बल्कि वो दूसरों के दिल जीतने वाले और इस्लाह करने वाले भी हों। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी ज़बान हमारी शख्सियत की आईना दार। जो लोग नरमी और खुश अखलाक़ी से गुफ्तगू करते हैं वो दूसरों के दिलों में घर कर लेते, जबकि सख्त ज़बान और बदज़बानी ताल्लुकात में दरारें डाल देती है। नबी के वसल्लम की सीरत में हमें बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन दुश्मनों को भी अपनी नर्म गुफ्तारी और हुस्न अखलाक से ज़ेर कर लिया। एक मर्तबा एक बुद्धू देहाती नबी के वसल्लम की मस्जिद में आकर पेशाब करने लगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम गुस्से में आ गए और फ़ौरन उस पर हमला आवर होने लगे।
مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت رکو، پہلے پیشاب مکمل کر لینے دو۔ پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس جگہ پر پانی بہا دیں، اور اس شخص کو محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، یہاں نہ گندگی ہوتی ہے اور نہ ناپاکی۔ اس بدو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور کسی پہ نہ کر۔ نبی کے وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت دین میں نرمی، حکمت اور محبت کا راستہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نرمی اور بھلی بات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر انسان کے ساتھ روا رکھنی چاہیے، چاہے وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجیے، کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وقل للناس حسنا اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے والدین سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اپنے بچوں اور شریک حیات سے ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے ملازمین، دکانداروں، پڑوسیوں اور سڑک پر چلنے والوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ہمارا انداز گفتگو کیسا ہوتا ہے؟ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اختلاف رائے میں بس زبانی پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ، طنز اور سخت کلامی عام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بنے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زبان کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیشہ نرم اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ گھر میں ہیں تو والدین، بہن بھائی، بچوں اور شریک حیات سے نرمی اور محبت کے ساتھ بات کرنا، سخت لہجے سے اجتناب کرنا اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا۔ دفتر میں یا جہاں کہیں کام پر ہو، ساتھی ملازمین اور ماتحتوں سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا، جھڑکنے یا سخت لہجے میں بات کرنے کے بجائے نرم رویہ اپنانا تاکہ کام کا ماحول بہتر ہو۔ دوستوں اور سہیلیوں میں ہو تو مذاق میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ایسا طنزیہ جملہ نہ کہنا جو دوسروں کے دل کو تکلیف دے۔ دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ عزت اور خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا۔ سوشل میڈیا پر بدتمیزی، گالی گلوچ اور سخت الفاظ سے گریز کرنا، نہایت تہذیب یافتہ انداز میں بات کرنا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا۔ دعوت دین کی راہ میں مخاطب کو دین کی بات اچھے انداز میں سمجھانا، ان پر سختی یا بد کلامی نہ کرنا بلکہ نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کرنا۔ نرم انداز سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ قرآن حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ نصیحت اور دعوت دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرعون جیسے ظالم کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ سورہ طہ آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔
नबी के सल्लम और साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रोशन मिसालें हमारे सामने। अल्लाह ताला ने नबी के सल्लम को नर्म खो, बुर्दबार और उसने अखलाक का कामिल नमूना बनाकर भेजा था। आप सल्लम की दावती हिकमत में नरमी, सब्र और खैर ख्वाही का पहलू नुमाया था। यही तर्ज अमल आपके साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी अपनाया। आइए चंद मिसालें उन पर हम नज़र डालते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाकर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत देने का फ़ैसला किया, लेकिन वहाँ के सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया और शहर के औबाशों को आप पर हमला करने के लिए उकसाया। वो लड़के आप सल्लम के पीछे लग गए, पत्थर मार मार कर आपको जख्मी कर दिया, यहाँ तक कि आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। इस हालत में जब फरिश्ता आया और अर्ज किया कि अगर आप हुक्म दे तो मैं इन पर पहाड़ उलट लूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और शिर्क से बचेंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये नरमी और दरगुजर की इंतहा थी जो हमें दावत दीन में सब्र व तहम्मुल और खैर ख्वाही का दर्स देती है। नबी के वसल्लम पर मक्का के कुफ्फार ने 13 साल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, घर से निकाला, जंगे मुसल्लत की, आपके अजीजों को शहीद किया, लेकिन जब मक्का फतेह हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर मुकम्मल कुदरत हासिल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय नरमी और अफ़ू दरगुजर का मुजाहिरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्ती नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज इनके दिलों में घर कर गए और वही लोग जो दुश्मन थे मुसलमान हो गए। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु इब्तिदा में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, यहाँ तक कि एक दिन वो नबी के वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में किसी ने इन्हें बताया कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुकी है। वो गुस्से में बहन के घर पहुंचे और उन्हें मारने लगे। उनकी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नरमी और वकार के साथ कहा, उमर तुम जो चाहो कर लो, लेकिन इस्लाम की सच्चाई को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल नर्म हो गया और जब उन्होंने कुरान की आयत सुनी तो उनके दिल में ईमान उतर गया। वो फौरन नबी के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम ले आए। ये वाक़या जाहिर करता है कि नर्म अल्फाज और हिकमत के साथ दी गई दावत किस तरह एक सख्त मुखालिफ के दिल को भी बदल सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक यहूदी से मनाज़रा हो रहा था। यहूदी ने बदतमीजी की और गुस्से में आप पर हमला कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ज़मीन पर गिराकर तलवार तान ली, लेकिन जैसे ही वो यहूदी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह पर थूक दिया, आप रज़ियल्लाहु अन्हु इसे छोड़ दिया। यहूदी हैरान होकर बोला, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए गिराया था, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर थूका तो मेरे दिल में गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा
अमल ذاتی इंतकाम में बदल जाए, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यहूदी इस अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि इसी वक्त मुसलमान हो गया। सूरह आल इमरान आयत 159 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुम्हारे रब की रहमत से तुम नरमखो हो गए और अगर तुम सख्त मिजाज और संगदिल होते तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। बस इन्हें माफ़ कर दो, इनके लिए बख्शिश की दुआ करो और इनसे मशवरा करो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यही वो नरमी और हुस्न अखलाक था जिसने दुश्मनों के दिल बदल दिए, सख्त दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया और इस्लाम को फैलाने का ज़रिया बनाया। बस हमें भी दावत दीन में नरमी, हिकमत और सब्र का दामन थामना चाहिए ताकि हमारे अल्फाज और अमल लोगों के दिलों पर असर करे और वह अल्लाह की तरफ रागिब हो। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में हो इसे खूबसूरत बनाती है और जिससे निकाल दी जाए इसे बिगाड़ देती है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी से महरूम कर दिया गया वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। यानी नरमी से महरूमी दरअसल भलाई से महरूमी है। अगर हम लोगों से सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो हमसे दूर हो जाएं और हमारी नसीहत भी इनके दिल में असर नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ताकीद की थी कि वो लोगों से भली बात करें, मगर उन्होंने इस हुक्म की नाफरमानी की। वो तकब्बुर में आ गए, नबियों से सख्त लहजे में बात की, हक की बात को छुपाया और गलत बयानी की, अवाम में सख्त रवैया अपनाया। यही वजह थी कि उन पर अल्लाह की नाराज़ी नाजिल हुई और वो दुनिया में जलील व ख्वार हो गए। आज उम्मत मुस्लिमा को इस आयत वकुल लिन्नासि हुस्ना पर अमल करने की ज़रूरत है। यह हुक्म सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं था, बल्कि हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। आज के माशरे में अगर हर शख्स अखलाक, नरमी और अच्छे अल्फाज अपनाए तो ख़ानदानों में मोहब्बत बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर बदज़बानी, गाली गलौज और तंज को ख़त्म किया जाए तो माशरती अमन कायम होगा। सियासत, कारोबार और दावत दीन में नरमी और हिकमत अपनाई जाए तो मसाइल हल होंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया है। रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें हम पर साए फगने। ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है कि इसने हमें एक बार फिर इस मुक़द्दस महीने की सादत अता फरमाई। ये महीना इबादत, तकवा, सब्र, शुक्र और नेकियों में इजाफे का बेहतरीन मौका है। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जो हमारे लिए एक अमली तरबियती दौरानिया है जो इंसान के अखलाक, आदत और रवैयों पर गहरा असर डालता है। ये महीना हमें आजिज़ी, इंकिसारी और नरमी सिखाता है जो किसी भी फ़र्द और माशरे की बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरबियती महीना है जो हमारे दिल व दिमाग को नर्म करता है, हमें आजिज़ी व इंकिसारी सिखाता है। रमज़ान में रोज़ा हमें भूख, प्यास और जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास दिलाता है। यह एहसास हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी ताकत और इख्तियार महदूद है। भूख और प्यास हमें इन लोगों का भी एहसास दिलाती है जो रोज़ाना भूखे प्यासे होते हैं। ये तजुर्बा हमें
दिल में तकब्बुर और ख़ुद पसंदी को ख़त्म करता है। हमें सिखाता है कि असली ताकत अल्लाह की है और हम इसके मोहताज हैं। हमें रमज़ान सिखाता है कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना ही असल कामयाबी है। रमज़ान हमें दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने और अपने रवैये में नरमी पैदा करने की तरबियत देता है। तरावी में एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना, इज्तिमाई इफ्तार, ज़कात और सदका देना हमें इज्तिमाइयत और तवाज़ी का दर्स देता है। हमें ये शऊर हासिल होता है कि हमारा माल, वक्त और तवानाई दूसरों के काम आए तो ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है। हम अपने रवैये को बेहतर बनाते हैं और दूसरों के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आते हैं। रोज़ा रखना महज खाने पीने से रुक जाना नहीं, बल्कि अपनी ज़बान, हाथ और रवैये पर काबू रखना भी है। रमज़ान में गुस्सा काबू में रखने, बदकलामी से बचने और माफ़ करने की तलकीन की गई है। सही बुखारी की हदीस है, नबी के वसल्लम का फरमान है, रोज़े की हालत में अगर कोई तुमसे झगड़े या गाली दे तो कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। इस महीने में सब्र और तहम्मुल की मशक़ हमें बाकी साल भी नर्म मिजाज और शाइस्ता बनने में मदद देती है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़बान को नर्म और शीरी बनाएं, नरमी और मोहब्बत के साथ बात करें और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। रमज़ान के बाद भी ये औसाफ बाकी रहे। रमज़ान की असली रूह यही है कि हम जो सीखे इसे अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर शामिल करें। मोअज़्ज़िज़ समाईन, आइए इस रमज़ान में ये अहद करें कि हम हमेशा नरमी और खुश अखलाक़ी से बात करेंगे, दूसरों को अच्छी नसीहत करेंगे, लेकिन सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ। अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करेंगे और फजूल बातों से बचेंगे। रमज़ान की तरबियत को अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। वक़ुलु लिन्नासी हुस्ना, यानी लोगों से भली बात कहना एक इस्लामी हुक्म, माशरती ज़रूरत और बेहतरीन अखलाक की अलामत है। अगर हर शख्स अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करे तो घरों में मोहब्बत, माशरे में अमन और दिलों में कुर्बत पैदा होंगी। अल्लाह ताला हमें वक़ुलु लिन्नासी हुस्ना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।